So Dr. Paresh Doshi is a director of neurosurgery and functional neurosurgical program at Jaslok Hospital. He is also director of restorative and regenerative medicine at the Jaslok Hospital. He has a several position in his credit. He is the president of the Neuromodulation Society, also the secretary of the World Society for Stereotatic and Functional Neurosurgery. He is also the past president of ISSFN, board member of INS, member of the member of the International Task Force for the Psychiatric Disorder. He has more than 60 publication and 550 invited lectures. He is a recipient of the PhD at Rajasthan University. He is also the recipient of the several awards in the field of medicine, neuroscience. Over to the Dr. Paresh Doshi. Thank you, Asmita. And can we have the first slide of the program, today's program? Today, this is the second webinar in the series. The purpose of this webinar, ये advanced information देने के लिए है और कई current information को reinforce करने के लिए है. तो आज की webinar में I would be talking on technical advancement in deep brain stimulation surgery. दूसरा, Dr. Sambetova is going to talk to us, Kyrgyzstan se. She's going to talk on medical treatment for advanced Parkinson disease. And Ms. Bharti Karkera is going to talk on tips and tricks for managing Parkinson disease. तो सबसे पहला लेक्चर हम चालू करेंगे मिस भारती करकेरा से. एंड if Asmita, you can share the slides. Bharti ji is a very senior Parkinson nurse specialist. Do you have the introduction slide for her? So she is a very senior Parkinson disease nurse specialist and she has been associated हमारे प्रोग्राम के साथ करीबन 25 साल से जुड़े हुए हैं और पार्किंसंस के बारे में बहुत ही सारा तजुर्बा और रिसर्च किया है उन्होंने. उनके कई पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं. एंड वो जसलोक के डीप ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम के एक आधार स्तंभ है जो पेशेंट केयर और केयर टेकर के साथ इंटरेक्शन बहुत ही घनिष्ठता से निभाते हैं. सो शी हैज बीन अ वेरी इंटरेक्टिव लेडी एंड ऑलवेज बीन रिस्पॉन्सिव या alert about the patient needs and patient care. So let us see what she would have to tell about how to handle patients of Parkinson's disease. ये जो चीजें हैं वो अपने पर्सनल अनुभव से और पेशेंटों को सुन के इकट्ठा की गई है so that it is going to come directly as a first-hand experience. Ms. Karkera, please. Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Thank you very much. को सभी को पता है कि पार्किंसन पेशेंट के साथ कितनी दिक्कतें आती है, डिफिकल्टीज होती है, तो उनका सिंपल एक एक्टिविटीज करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है. जैसे कि शर्ट के बटन्स लगाने हैं, खाना खाना है, वॉकिंग करना है. दीज आर द रियली स्ट्रगल फॉर देम. लेकिन उसके साथ स्मॉल एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन करने से उनकी डे की चर्या है वो अच्छा रन स्मूथ कर सकती है. तो हियर आई कैन शेयर सम टिप्स टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पार्किंसंस पेशेंट विथ राइट मेडिकेशन, with our supportive therapies, exercises, so they can take a help of this therapies and improve their quality of life. So there are challenges faced in a day-to-day's life, that is motor symptoms. There tremors, कंपन होती है, stiffness of body होती है, जकड़न होती है, slowness of movement, slow movements होते हैं जिसे वो कुछ कर नहीं पा सकते. freezing of gait means चलने में दिक्कत होती है, अटक जाते हैं. impaired balancement means चलते चलते उनको they might lose their balance. Next. So let me start with medication routine. आप सभी को पता है लियोडोपा मेडिसिन, जैसे उसको सिंडोपा प्लस भी बोलते हैं, वो आपको खाली पेट में लेनी है जिससे आपको अच्छी इफेक्ट और जल्दी इफेक्ट आती है, पावर आती है. Maintain gap between medicine and meals every time.
इसका मतलब है कि आपको सुबह खाली पेट में लेके 1 घंटे का गैप रखना है और खाने के बाद 2 to 3 आवर्स का गैप रखने से आपकी जो भी दवाइयाँ लेते हैं उसकी अच्छी पावर आ जाती है। अवॉइड प्रोटीन इंटेक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अराउंड द टाइम ऑफ मेडिकेशन। जो आप लेते हैं उसकी इंटरफियरेंस होती है सिंडोपा और लियोडोपा के साथ। टू अवॉइड दैट इंटरफियरेंस एंड बेटर एब्जॉर्प्शन आपको ये अवॉइड करनी है। एंड कीप अपडेटिंग मेडिसिन लिस्ट विथ यू। नेक्स्ट, सो यूटिलाइज ऑन पीरियड। इसका मतलब ये है जब भी आप सुबह मेडिसिन लेते हैं और आप 45 मिनट्स में आपको ऑन पीरियड आ जाती है, जो अच्छी स्थिति होती है, वहां आपके सब कामकाज रहते हैं वो आप फिनिश करने में तैयारी में रहते हैं। जस्ट लाइक आप गोइंग टू द वॉशरूम में जाना है, ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग शावर्स, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वर्किंग ऑन लैपटॉप, और आउटडोर एक्टिविटीज में एक्सरसाइज करना है, जॉगिंग के लिए करना है, वॉकिंग करना है, ये सब बेसिक एक्टिविटीज आप कंप्लीट करने में रहते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट रोल इज हेल्दी वेल बैलेंस डाइट। उसमें आपको ईट एंटीऑक्सीडेंट फूड रहते हैं और लेने हैं। फिर हाई फाइबर डाइट उसमें इंक्लूड करना है आपको। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स रहते हैं, जैसे पालक रहते हैं, चौली की सब्जी रहती है, पत्ते वाली सब्जी रहती है, वो खानी है। फिर नट्स है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वाले नट्स, वो सब आपको खाना है। फिर आपको होल ग्रेन्स मिलते हैं, वो ऐड करना है। फ्रूट्स में पपैया है, एप्पल है, मौसम्बी है, ये सब वाटर कंटेंट फ्रूट्स सब आप ये करेंगे तो आपको उसकी ज्यादा अच्छी इफेक्ट आ जाएगी। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में आपको एटलीस्ट 6 to 8 और 10 ग्लासेस और 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर पूरे दिन में लेनी है। रात को आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम में जाने के लिए दिक्कत होती है। नेक्स्ट, these are the supportive therapies for Parkinson's patient. So yoga, meditation, dance and music, जिसे आप योगा 3 days करना है, जिसे आपको बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी मोबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, इसका फायदा मिल सकता है। मेडिटेशन में रोज करनी है, ऑन पीरियड में करनी है, 3 times in a day, morning, evening and before going to the bed, so that you have इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब आपकी कंट्रोल में होती है। जो डांस और म्यूजिक थेरेपी में आपकी बॉडी, ये भी आपको ऑन फेज में करना है, जो अच्छी स्थिति होती है उसमें करना है। डांस से आपके बॉडी और इम्बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, उससे आपको हेल्प मिलती है। म्यूजिक से अगेन यू रिलैक्स योरसेल्फ, काम योरसेल्फ, एंजाइटी लेवल वो सब कम होती है। Next, please. Yeah. This is another difficult task for Parkinson patient. आप सभी को पता है पार्किंसन पेशेंट की आवाज जो रहती है वो बहुत कम वॉल्यूम रहती है, उनकी स्लर्ड स्पीच रहती है और एक ही टोन में बातें करते रहते हैं, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। उसमें हेजिटेशंस भी रहते हैं, बोलने के लिए बीच में लटखटाते हैं। तो इसके ओवरकम आने के लिए आपको ऑन मेडिकेशन पे फेशियल और वॉइस एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आप मुंह ओपन, फेस आप इसमें रिलैक्स होने से मुंह ओपन कर You are muted, sister. Sorry, sir, there was a network issue. No issue. So can you hear me? Yeah, we can hear you. So उसमें आप, yeah, so I was talking about the voice, जो बात
की रहती है उनके एक्सरसाइज की, सीक फॉर द स्पीच थेरेपी, स्पीक, ओपन योर माउथ, स्पीक लाउड, जोर से बात करके स्लोली बात करना है जो सामने वाले को समझ में आए, और बीच में पॉज लेके रुक रुक के बात करना है। और जब भी आप अगर यू आर ऑन अ जॉब और आपको प्रेजेंटेशन करना है, अरेंज मीटिंग करना है, तो जो आपकी अच्छी स्थिति, ऑन पीरियड की स्थिति रहती है, उसमें आपको प्लान करना है कि उस टाइम पे आपकी स्पीच जो रहती है वो बेस्ट रहती है, तो यू कैन मैनेज विद योर प्रेजेंटेशन ऑफ मीटिंग्स। सेकेंड, आप ऑडियो कॉल करने से वीडियो कॉल कीजिए जिससे आपको अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। या there are urinary problems. They are the real challenging for all Parkinson's patient, especially the elderly जो रहते हैं उनको ये काफी तकलीफ रहती है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार वॉशरूम जाने से उनको तकलीफ होती है, इसके लिए वो पानी कम पीते हैं, लेकिन पानी कम पीने से उनकी यूरिन करने की जो ये रहती है स्थिति रहती है, उसमें ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, फिर उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है। ये सब अवॉइड करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। केयर ऑफ प्लान इज टू मेंटेन योर हाइजीन लेवल, drink at least 2.5 liters of water per day throughout day, not at the night time, to avoid frequent trips to the washroom. फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स रहती है जो आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, पब्लिक इवेंट्स, एट बेड टाइम, वेट बेडिंग, इसके लिए आपको डायपर का यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेड वेटिंग होती है तो आपके पार्टनर्स को भी डिस्टर्ब होती है, आपकी नींद खराब होती है, उसमें बार बार उठ के आपको वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो ये उसके लिए आपको डायपर यूज करेंगे तो उसमें आपकी ये सभी दिक्कतें होती है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी विदाउट डिस्टर्बेंस ये नींद अच्छी हो सकती है। दूसरी कॉन्स्टिपेशन, अगेन उसमें मैंने जैसे पहले बताया डाइट के बारे में, जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेनी चाहिए आपको, इंक्लूड हाई फाइबर्स डाइट विद फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स टू इम्प्रूव योर कॉन्स्टिपेशन, एक्सरसाइज and walking, that will help you to improve your constipation. So if it is needed, you can add some laxatives or soft stool softener, and next day when you get up, have a lukewarm 1 glass of water on empty stomach. Next please. Sleep challenges, this is another तकलीफ है पार्किंसन पेशेंट को, क्योंकि जकड़न की वजह से बॉडी की मूवमेंट्स काफी तकलीफ होती है, तो उनको बेड में टर्निंग में दिक्कतें होती है, फिर वॉशरूम के लिए बेड से उठने के लिए भी तकलीफ होती है, टू रीच आउट टू द वॉशरूम। तो इसके लिए आपको क्रिएट अ कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट इन द रूम इटसेल्फ, कूल, डार्क एंड क्वाइट, जिससे आपको अच्छा महसूस लगे और अच्छी से नींद के लिए हेल्प कर सकते हैं। अवॉइड caffeine, unnecessarily things like tea, coffee, caffeine, to avoid such things. Then listening to the music, reading some books, drinking warm milk, or have a warm water bath to relax your body. And don't try to sleep if you are not feeling sleepy. Just get up and move around your bed and try to listen to music so that you can fall asleep. दूसरी बात जो है कि डे टाइम स्लीपिंग नहीं सोना नहीं है आपको, तो अगर सोना है तो पोस्ट लंच एक आधा घंटे के लिए आप नैप ले सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट स्लीप डे टाइम। तीसरी बात, नाइट टाइम पे आपको ज्यादा पानी नहीं, लार्ज अमाउंट में पानी नहीं पीना है, क्योंकि फिर आपको रात भर वॉशरूम जाना पड़ेगा और आपकी डिस्टर्ब स्लीप हो जाएगी। उसके बाद आपको जो मैट्रेस है, पिलोज है, वो सब कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी बेड लिनन लाइट वेटेड होनी चाहिए, जिसे आप खुद उसको अपने ऊपर खींच सकते हो, निकाल सकते हो।
तो ये सब अगर आप कर जोगे तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी रात को। नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स एंड एडेप्टेशन। तो सेफ्टी मेजर्स, जैसे वॉकर से आप चलते हो, जिसको इम्बैलेंस होती है, तो वॉकर के सपोर्ट से आप चलते हैं तो आपकी बॉडी सेफ्टी ऑफ द बॉडी होती है विद द सपोर्ट ऑफ वॉकर। उससे आप व्हाइल वॉकिंग बैलेंस इम्प्रूव होती है। तो आपकी चलने की ये भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हैंड बार्स स्टेयरकेस के नेक्स्ट में होना चाहिए, जिससे आप सपोर्ट लेके चलने में इजी हो जाएगा। विद प्रॉपर हाइट ऑफ चेयर्स विद आर्म रेस्ट विद इजी टू सिट अप एंड गेट अप विदाउट लूजिंग योर बैलेंस, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। और रूम्स एंड वॉशरूम में आपको जो फ्लोरिंग है वो स्टेबल और नॉन स्लिपरी होनी चाहिए टू अवॉइड ट्रिप्स एंड फॉल्स। वॉशरूम में आपको elevated toilet seats होनी चाहिए with the armrest or hand bars next to the toilet seats. Second, sitting arrangement should be there to sit and do some tasks like shaving, brushing your teeth, and call bell. It's very important for the help if needed for the caretaker. Next, मोबिलिटी टू मैनेज योर फ्रीजिंग ऑफ गेट। इसमें क्या होता है, आपको पैर आपके चिपक जाते हैं फ्लोर पे, तो ये डिवाइसेस रहते हैं। तो वॉकर के साथ लेजर लाइन आती है, तो आपको फ्लोर पे और लेजर लाइन देख के आपको या प्लीज प्ले द वीडियो। तो उसमें आपको फॉलो करनी है वो लाइन, जिससे आपकी वॉकिंग ये है वो मूव ऑन होती है एंड यू कैन वॉक आराम से। जैसे दूसरे वीडियो में भी लेजर स्टिक है, जिसे भी सेम टेक्निक है, जिसे आप फॉलो दी रेड लेजर लाइन एंड try to cross that line so you improve your freezing of gait. And while walking, use a proper and correct shoes for the good walking. That will improve your freezing of gait. Next slide, please. Next slides, yeah. आप सभी को पता है पार्किंसन पेशेंट के चलने में हेजिटेशन होती है, उसमें बेबी स्टेप्स लेके वो चलते हैं, डिफिकल्टी इन टर्निंग होती है, तो उनको ऐसा लगता है, फियर लगता है, डर लगता है कि मैं गिर जाऊं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में प्लीज रन द वीडियो। और दूसरे इसमें आपको दिखाई देता है कि आपको मार्चिंग करके विजुअलाइज कि आपको लॉन्ग स्टेप्स लेके चलना है, कंटिन्यूटी ऑफ टर्निंग में भी, तो जिससे आपकी वॉकिंग के इसमें इम्प्रूव हो, चलने में चाल आपकी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। Take a hobby to keep yourself busy. There are many things like singing, dancing, playing cards games with your partners or friends, indoor games like table tennis, badminton, painting and craft, listening to music, reading your favorite books. Next. एक्सेप्टेंस एंड नॉलेज ऑफ पार्किंसंस। आपको उसको अपने में लेना है, साथ में लेना है। उसके लिए आपको उसके बारे में अपडेट करना है नॉलेज, कि उसके साथ दोनों आप कैसे एक साथ में आपके लाइफ में चल सकते हैं। वो आपको इजी होगा टू कोप विद पार्किंसंस सिम्टम्स। पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है, अप्रोच इन लाइफ, timely medication with a proper technique, counseling session and seek supports. Counseling session के लिए there are support groups for Parkinson's patient. There they have a platform to share their experience with their Parkinson's के पेशेंट के साथ शेयर करने से उनको थोड़ा रिलीज ऑफ इमोशंस, डिप्रेशन, आइसोलेशन मदद करती है। Stay active and maintain positive mindset. Next, please. Yeah, adapt, overcome, and thrive. So you will see that. Please play the video. Here, the Parkinson's patient after surgery, he has played his guitar maybe after years or something, but he was so happy to play singing and
playing guitars. Thank you. Next slide. Thank you, sir. I hope I have covered maximum tips for the Parkinson's patient. Yeah, I think it was, thank you, sister. It was very well covered. And I would suggest that people can write their questions in the chat box, and we will continue to answer as we progress during the talk. The next talk speaker was Professor Dr. Choplan Sambetova. Unfortunately, she's traveling within US, and she's not able to join because of the difficult connectivity. Today, it seems like that we have a connectivity issue. So she's not going to talk today. She has promised to send us a recorded video, which would be uploaded on YouTube. But we will cover the topic of changes of medicines or advanced medication at some other point in time in our webinar. In lieu of that, I will be covering in a little more depth about all the questions that you would have for deep brain stimulation surgery and understanding the advancement of deep brain stimulation surgery. मैं हिंदी में जरा बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर संबेतोवा अपने साथ आ नहीं सकते आज, क्योंकि वो यूएसए में ट्रैवल करते हैं, रास्ते में है और कुछ सिग्नल इश्यूज की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने को हमको रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे जो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, सो आप देख सकेंगे। और वो यूजुअली इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में ट्रांसलेट करके रखेंगे। तो न्यूअर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में वो बताएंगे। आज के दिन में मोस्ट ऑफ द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल इन इंडिया। तो अगर कोई नई दवाई आती है तो आपके डॉक्टर के पास वो पहुंच जानी चाहिए और उससे आपको थोड़ा सा बेहतरीन फायदा मिलना चाहिए। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है, उस पे जा रहा हूँ और वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के मैं बारे में बताना चाहूँगा। और उसमें जो एडवांसेस है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। और आप लोगों को वापस मैं अनुरोध करता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर सेशंस चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर टाइप कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन है हम आंसर करेंगे। ये हमको ज़्यादा वक्त मिलेगा अभी ये सेशन में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का, तो आप उसका फायदा उठाइए और आपके सब प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। सो द टाइटल ऑफ द टॉक इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वेयर आर वी एंड व्हाट नेक्स्ट। ये टॉपिक के अंदर हम काफी चीजें बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्निक्स, और जो फ्यूचर में आने वाला है एक या दो एडवांसेस उसके बारे में। लेकिन जो अभी अवेलेबल है उसके बारे में ज्यादा कंसंट्रेट करके बात करेंगे और आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सको जब भी आपको पार्किंसन डिजीज की सर्जरी के बारे में सोचना है। तो लेट अस स्टार्ट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। करीबन 3 या 4 साल से पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोड आते थे वो इस तरह के आते थे, जहां पे एक इलेक्ट्रोड का पूरा रिंग रहता था। और अभी जो इलेक्ट्रोड आते हैं, सेगमेंटेड इलेक्ट्रोड आते हैं, तो एक रिंग को 3 भागों में विभाजन किया जाता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स, आई विल शो यू। When you have only one ring like this, जब भी आप करंट देते हो, ये ग्रे एरिया है, करंट का एरिया है। जो अंदर का व्हाइट एरिया है वो इलेक्ट्रोड है, बाहर का ग्रे एरिया है वो करंट है। तो आप देख सकते हो कि जब भी मैं करंट दूंगा तो बिकॉज इट इज अ रिंग, द करंट स्प्रेड्स ऑल अराउंड द रिंग। तो उसकी वजह से अच्छी जगह स्टिमुलेशन जहां पे हमको चाहिए उधर भी जाता है, लेकिन स्टिमुलेशन नहीं चाहिए उधर भी पहुंचता है। तो अगर हमारे पास ये डायरेक्शनल इलेक्ट्रोड आ जाता है, तो ये लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो मैं इसके 2 पार्ट ऑफ द रिंग को मैंने 3 भाग में अभी डिवाइड कर दिया है। तो 2 पार्ट जो रिंग के है उसको मैं स्टिमुलेट करता हूँ, एक पार्ट को ब्लॉक कर देता हूँ, तो पूरा करंट जो ग्रीन एरिया है जहां पे हमको स्टिमुलेशन चाहिए उधर पहुंच जाता है।
तो इट इज कॉल्ड करंट स्टीयरिंग. इट इज पुशिंग द करंट इन द डायरेक्शन वेर यू वांट इट एंड अवॉइडिंग द करंट टू गो इनटू द डायरेक्शन वेर यू डू नॉट वांट इट. सो इस तरह से हमको पता चलता है इसका. क्या फायदा है डायरेक्शनल लीड के? डायरेक्शनल लीड के इट रिड्यूसेस कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स. अपने जो करंट स्प्रेड होता है, जैसे मैंने बताया, अनवांटेड जगह पे जाता है तो मेमोरी वगैरह के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है. ट्रेमर कंट्रोल बेटर होता है, क्योंकि आगे का वीडियोस में बताऊंगा कैसे हम और जानकारी से ट्रेमर का कंट्रोल बेटर कर सकते हैं या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आउटकम में. अगर मैं बेहोश करके डीबीएस कर रहा हूँ, आज के दिन में जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन लास्ट मीटिंग में मैंने बताया था आपको वेबिनार में कि वी आर डूइंग इट इन अवेक कंडीशन, पेशेंट इज अवेक. अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, पेशेंट को बहुत डर लगता है, तो अभी वर्ल्ड ओवर करीबन 25 से 30% डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी अस्लीप होते हैं. अस्लीप का मतलब बेहोश करके. तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम करंट को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है. और अल्टीमेटली अगर हमको चाहिए उधर करंट देने का है और नहीं चाहिए उधर नहीं देना है, तो एनर्जी लेवल भी हमको कंजर्व कर सकते हैं. कम करंट में हम ज्यादा काम कर सकते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांसेस? जब भी हमने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी 1998-99 में चालू किया, तभी हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोग्रामर थे. इतना बड़ा प्रोग्रामर बैग लेके हमको घूमना पड़ता था. उसके बाद आया नया प्रोग्रामर जो हैंड हेल्ड था, और इतने छोटे प्रोग्रामर से हम कंट्रोल कर सकते थे. और अभी तो सब प्रोग्रामर खाली आईपैड पे आ गए हैं. तो आईपैड के द्वारा पूरा पेशेंट का कंट्रोल घर बैठे भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज. जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हुआ, वो हमको इलेक्ट्रोड का पोजीशन ऑपरेशन के बाद कहाँ पे है और उसका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के कहाँ पे है, वो उसकी जानकारी ज्यादा प्रिसीजन से मिलने लगी. बिकॉज द न्यूअर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अभी आप लोग सबको मालूम हो गया है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब वर्ड अभी घर घर की बात हो गई है. ये सब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हमारे फील्ड में भी अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, और उसी की वजह से हमको पता चलता है. तो अभी आप देखो तो ये ग्रीन एरिया है, वो मेरा टारगेट एरिया है. मैंने टारगेट एरिया को ड्रॉ कर दिया है ब्रेन के अंदर. अभी मैं देखता हूं कि मेरा इलेक्ट्रोड वो टारगेट एरिया के रिलेशन में कैसे है. तो आप भी देख सकते हो 1, 2 और 3 कांटेक्ट पॉइंट मेरे टारगेट एरिया में है. सो विच इज अ वेरी गुड थिंग. जसलोक हॉस्पिटल में इससे भी 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ तक की जानकारी काफी सेंटर्स में है, और जो यूजुअल सेंटर्स है उसको पास है. लेकिन हमको पता चला है, और हमको पता, इट्स नॉट परेश दोषी ओनली, सर्टन एडवांस सेंटर्स जहाँ पे रिसर्च होती है इसके बारे में, उसको पता चला है कि ये जो ब्रेन के कनेक्टिंग वायर्स है, फाइबर ट्रैक्स, ब्रेन के हाईवे, ब्रेन के रोड मैप्स, ब्रेन के केबल, जो भी वर्ड यूज करने हैं, वो ब्रेन के एक एरिया से कनेक्ट होकर दूसरे एरिया में जाते हैं. और ये जो हमारा टारगेट है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, उसके थ्रू पास होते हैं. तो ये जब भी हाईवे में से पास होते हैं, तो वो कौन से एंगल से पास होते हैं, कौन सी डायरेक्शन से पास होते हैं, कितना दूर है, कितना नजदीक है, वो हम ये स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स यूज करके फाइंड आउट करते हैं. और उसका फायदा क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. तो आप देख सकते हैं कि कोई फाइबर्स इधर से जाते हैं, कोई फाइबर उधर से जाते हैं, कोई फाइबर अंदर जाता है, कोई बाहर जाता है, और डिफरेंट फाइबर्स का डिफरेंट काम है. और वो फाइबर्स में कौन सा फाइबर को स्टिमुलेट करके हमको क्या फायदा मिलेगा, और कौन से फाइबर को स्टिमुलेट करके हमको नुकसान मिल रहा है, तो ये सब का एनालिसिस जसलोक अस्पताल में हम करते हैं. इसलिए हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का जो एमआरआई भी करते हैं, करीबन 2.5 घंटे तक का एमआरआई होता है. कभी कभी पेशेंट पूछते हैं कि क्यों इतना लंबा एमआरआई करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाके आपको 3 साल के बाद, 5 साल के बाद डीबीएस किया है आपने या मेरे पास करवाया है, तो आपका डिजीज चेंज होगा. जब चेंज होगा डीबीएस डिजीज, तो मुझे आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ये सब फाइबर की जानकारी होने से मेरी प्रोग्रामिंग करने की क्षमता या आपको ट्रीट करने की क्षमता
बहुत बढ़ जाती है, वी कैन गिव यू अ बेटर आउटकम। और ये अभी मैं बताता हूँ खाली प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंस, क्यों अच्छा प्रोग्रामिंग जरूरी है। ये पेशेंट है, इसको हमने सिंपल स्टिमुलेशन की दिया था, तो आप देखोगे कि डीबीएस के बाद एकदम यूफोरिक हो गया है, एकदम हाइपर हो गया है। हमको ये सभी नहीं चाहिए आदमी, हमको चाहिए बैलेंस्ड आदमी। तो हमने वापस रिप्रोग्रामिंग किया फाइबर का इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और ही बिकेम नॉर्मल। सो यू विल सी दैट इन दिस वीडियो। अभी मॉडिफाई किया, सेटिंग्स हमने चेंज किया, डायरेक्शनल लीड यूज की, ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी हैड वी पुट इट इनटू प्रोग्रामिंग द न्यू सेटिंग, एंड यू कैन सी हिम, वो कंप्लीट नॉर्मल हो गया। Period of 30 years. Next day morning, completely normal. 5%. So, अगर ये हमको जानकारी नहीं होती है या आपके सेंटर को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो आप परेशान होते ही रहेंगे। डीबीएस करने के बाद भी आपकी परेशानी कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी सेंटर में आप सर्जरी कराना चाहते हैं, वो सेंटर को पूरी जानकारी हो इसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग हो, और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रबल शूट करने की क्षमता हो। अभी मुझे काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में 2 प्रकार के इम्प्लांट है, हमको कौन सा चूज करना। तो मैं हमेशा बताता हूं कि आई डिसाइड द टाइप ऑफ इम्प्लांट बेस्ड ऑन पेशेंट्स डिजीज। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको मैं कौन सी चीज प्रोग्रामिंग से ठीक कर सकूंगा। बट जस्ट आपको जानकारी के लिए 2 प्रकार के डिवाइसेस अपने पास अवेलेबल है, मेट्रॉनिक और बॉस्टन साइंटिफिक। मेट्रॉनिक में 2 डिवाइसेस है, परसेप्ट पीसी और परसेप्ट आरसी, और ये दोनों रिचार्जेबल है। एक रिचार्जेबल है, एक नॉन रिचार्जेबल है। नॉन रिचार्जेबल 5-6 साल चलता है, रिचार्जेबल 15 साल के ऊपर चलता है। और ये दोनों एमआरआई कॉम्पेटेबल है। और इसके अंदर एडप्टिव डीबीएस एक टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर लोकल फील्ड पोटेंशियल ब्रेन के सिग्नल को सेंस करके उसको ऑल्टर करके करने की क्षमता ये रखता है, और वो रिस्पॉन्सिव स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो मेरे को जितना भूख लगा है इतना ही मैं खाना खाऊंगा, जितनी ब्रेन को जरूरत है इतना ही करंट वो प्रोग्राम देगा। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस डिवाइस। बॉस्टन साइंटिफिक का जो डिवाइस है, तो उसमें बैटरी लाइफ 5 से 6 साल, सिमिलरली उनके पास भी 2 सेटअप है। एक का साल 25 साल चलता है, कोई 5 साल चलता है। और एमआरआई कॉम्पेटेबल दोनों चीज है, डायरेक्शनल लीड के साथ भी कंपेटेबल है, एंड एडवांस प्रोग्रामिंग फैसिलिटी भी इसमें है। तो ये दोनों को कंपैरिजन करें तो क्या है, ज्यादा चूज करने का नहीं है। इसलिए मैंने बताया आपको कि इट इज अ बेस्ड ऑन द क्लिनिशियंस डिसीजन मोस्टली, especially in my department, as to which is the device that would benefit you, because it depends on your original symptoms. आपको ट्रेमर ज्यादा है, फ्रीजिंग ऑफ गेट ज्यादा है, बैलेंस का प्रॉब्लम ज्यादा है, आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, आपको कौन सी चीज से ज्यादा तकलीफ है, आपको स्पीच की वजह से ज्यादा तकलीफ है कि फॉलिंग के वजह से ज्यादा तकलीफ है, आपको ट्रेमर की वजह से ज्यादा तकलीफ है कि फ्रीजिंग ऑफ गेट की वजह से ज्यादा तकलीफ है। आपका एनालिसिस, आपके बारे में सुन के, आपका रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन असेस करके, वी एडवाइज विच पर्टिकुलर डिवाइस इज सुटेबल टू यू। बट अदरवाइज, मोर एंड लेस, according to me, both of them have similar advantages and some disadvantages. We come to the next level of technique improvement। जब मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, ट्रैक्टोग्राफी, ब्रेन हाईवेज, ब्रेन पाथवेज, जिसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इसकी सब शुरुआत हुई वो एक सर्जरी में, जहाँ पे हमको डिप्रेशन के बारे में सर्जरी करनी थी, लेकिन हमको कोई जगह पता नहीं था वो ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली कौन सा पिन पॉइंट एरिया है। तो इसलिए हमने ये फाइबर ट्रैक्ट करने का चालू किया, इमेजिंग करने का।
जैसे ही हम ये चीज को इमेजिंग करने लगे, हमको पता चला कि इसका तो बहुत ही फायदा है, इसका उपयोग हम आगे जाके भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हेलन मेबक करके जो साइंटिस्ट है यूएसए में, उन्होंने दूसरे प्रकार की डिप्रेशन सर्जरी में, जिनके सम पेशेंट्स में फायदा होता था, सम कोई पेशेंट्स में नहीं होता था। ये डिप्रेशन में भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी होती है, ये हमारे सेंटर में होती है, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स होते हैं इसके, क्योंकि बहुत सीवियर डिप्रेशन में हम करते हैं। लेकिन ये पेशेंट्स को, कोई पेशेंट्स को फायदा होता है, कोई किसी को नहीं होता है। तो कैसे चुने, हाउ डू वी डिसाइड विच विल improve और नॉट? सो दैट इज वाई वी यूज दिस ट्रैक्टोग्राफी और फाइबर ट्रैकिंग। और इसमें देख सकते हैं ब्रेन के 4 डिफरेंट फाइबर्स जहां पे ज्वाइंट होते हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रोड वो जगह पे है तो मुझे उधर से फायदा मिलता है। देखो साइंस कितना आगे बढ़ता जाता है और कैसे फायदा मिल सकता है। कोई पेशेंट को फायदा, एक पेशेंट ये ब्रायन कोपाल करके है, न्यूयॉर्क के डॉक्टर, उनके 2 पेशेंट को उन्होंने सेम ऑपरेशन किया, दोनों बाजू माना 4 इलेक्ट्रोड डाले, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रोड सेम जगह पे होने के बावजूद अच्छा आउटकम दिया। चौथा इलेक्ट्रोड वो वहीं पे था, फिर भी फायदा नहीं मिला पेशेंट को। तो वो उसके लिए उन्होंने ट्रैक्टोग्राफी किया और पता चला कि वो बाजू के ब्रेन ने एक्चुअली जो ट्रैक इधर से जानी चाहिए वो थोड़ा आगे से जा रही थी। तो उन्होंने नया इलेक्ट्रोड उसके थोड़े आगे डाला और फायदा मिल गया है। सो टू कैप्चर बैक द बेनिफिट, ये प्रोफेसर क्यूनी है साओ पाउलो ब्राजील से। तो उन्होंने में क्या किया कि उनके पेशेंट्स को बहुत पेन होता था ऑपरेशन के बाद। तो उनको पता था कि ये जो ब्लू एरिया है वो ब्रेन का एरिया है पेन के लिए रिस्पॉन्सिव। तो उन्होंने ये ट्रैक्टोग्राफी करके कनेक्शन ढूंढे ब्रेन के, कि ये मेरा इलेक्ट्रोड का कौन सा तार वो ब्लू एरिया के साथ कनेक्ट करता है। वो एरिया का तार जब स्टिमुलेट किया तो उनका पेशेंट का पेन चला गया। सो यू कैन यूज द सेम टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इफ यू आर अवेयर इन मेनी वेज। हमने ये पेशेंट का, आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि रेगुलरली अगर ये पेशेंट ऑपरेट होता है तो कैसे होता है। We are now trying to use the fiber tracking to further improve the programming capability. As far as the image guided programming is concerned, we are in the center of the STN on contact 2, and this should give us the best effect, and that is what we found clinically. अगर कोई और सेंटर में ये ऑपरेशन होता है तो ये अगर इलेक्ट्रोड ये पोजीशन में है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी 100% सक्सेसफुल। बट मेरे पेशेंट को आप सुनोगे, the fiber tracks passing through this at the VTA that we stimulate, we could see that hardly any fibers were going to the motor area and most of them are. जब भी हमने ये फाइबर ट्रैकिंग करके जो टेक्निक है ये यूज किया तो हमको पता चला कि ये एरिया के फाइबर्स को कनेक्ट करता था, लेकिन हमको ये एरिया के फाइबर्स को कनेक्ट करना था क्योंकि ये पेशेंट को कंपन का प्रॉब्लम था। भले इलेक्ट्रोड बराबर पोजीशन में है लेकिन ये एरिया का फाइबर कनेक्ट नहीं होता था। तो जब भी हमने कनेक्ट किया उसको, करंट को हटाया थोड़ा, direction of the current, if we direct it more posteriorly than anteriorly, we could see that large amount of fibers are now being included in the motor area. And अभी आपको दिखता है कि ये ज्यादा फाइबर्स हमने ये ब्लू एरिया में इंक्लूड कर दिया, तो ये वजह से अभी हम इसका आउटकम इंप्रूव कर सके। दूसरा एरिया है जो मैंने आपको बताया था, लोकल फील्ड पोटेंशियल और बायोमार्कर्स। तो ये है मेट्रॉनिक का जो डिवाइस है, जो लोकल फील्ड पोटेंशियल के द्वारा आपका ब्रेन सिग्नल सेंसिंग करके उसके जरूरत के हिसाब से आपको करंट दे सकता है। तो दैट इज एन एडेप्टिव डीबीएस, एंड उसकी वजह से आपकी करंट की जरूरत कम हो जाती है और इंप्रूवमेंट इन द सिम्टम्स बिकम मच मोर यूनिफॉर्म। आगे जाके आपको वेरेबल डिवाइस आ जाएगा, एप्पल वॉच होगी, पैर में एंकलेट हो गए, तो फ्रीजिंग ऑफ गेट, चलने में दिक्कत होगी तो भी आपको उसके बारे में आपको फायदा मिलेगा। दिस इज वी विल नाउ बी डेमोन्स्ट्रेट। मैं आगे जाके बात करता हूं उसके बारे में, अभी आपको ये बताना चाहता हूं ये इमेजिंग टेक्निक्स जो बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है। हम पहले 3 टेस्ला एमआरआई में ऑपरेट करते थे, अभी 7 टेस्ला एमआरआई इंडिया में आया नहीं है। बट जैसे ही 7 टेस्ला एमआरआई आएगा
हमारी क्षमता सब थैलेमिक न्यूक्लियस या तो हमारा टारगेट देखने में बहुत ही सारी इंप्रूव हो जाएगी। और लास्ट एक दो स्लाइड्स नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा प्रोग्राम में, जो वेरेबल डिवाइस है एंकल रिस्ट वगैरह के, उससे हमको प्रोग्रामिंग में कैसे सुविधा मिलती है, हम उसके बारे में नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे। ये डीबीएस सर्जरी जसलोक में ऐसे ही नहीं हो सकती है। वी हैव अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, राइट फ्रॉम द मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट टू पीपल in gastroenterology, psychiatry, psychology, nuclear medicine, pediatric neurology, radiology, everyone is there who helps this team. ये एक सर्जरी की टीम है। ये डीबीएस सर्जरी कंप्लीट होने के बाद का फोटो है, और आप देख सकते हैं कि इतने लोग हमारी टीम में काम करते हैं जब ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है। और ये हमारी इंपॉर्टेंट कोर टीम है जो आपको डे टू डे इंटरेक्शन में या प्रोग्रामिंग में मिलते हैं। With that, I would like to end and start taking the questions. You can type your questions in the chat box. I think there are a few questions already there, and I will continue start taking them. Yeah. Before I take that, Asmita, can you flash the slide? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जसलोक हॉस्पिटल वर्ल्ड पार्किंसन डे के हिसाब से आपको काफी डिस्काउंटेड रेट्स में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी ऑफर कर रहे हैं। आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके एक 4 लाइन का फॉर्म, द अदर वन, द अदर स्लाइड प्लीज, हाँ, जस्ट कीप दैट ऑन, या। सो ये आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप एक छोटा सा फॉर्म रजिस्टर करेंगे तो जसलोक हॉस्पिटल की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका नाम कंसेशनल डीबीएस के लिए एनरोल कर दिया जाएगा। नाउ लेट मी आंसर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसी ने पूछा है स्टेम सेल थेरापी के बारे में आपका असेसमेंट बताइए। स्टेम सेल थेरापी इज एन नेसेंट माना बहुत ही अर्ली स्टेज में है। आज के दिन में स्टेम सेल थेरापी का कोई इंपॉर्टेंट ट्रायल वर्ल्ड में कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। देयर हैव बीन सम जीन थेरापी विच वी वांटेड टू डिस्कस इन द एडवांस मेडिकल मैनेजमेंट, बट वो भी अभी ट्रायल फेज में है। क्लिनिकल फेज में कोई भी थेरापी अवेलेबल नहीं है जो हम आपको सजेस्ट या ऑफर कर सके या इसके बारे में जानकारी देख सके। हाउ डू यू असेस फॉर द पेशेंट्स कंप्लायंस बिफोर सर्जरी एंड डू यू ट्रेन देम? यस, पेशेंट को बहुत सारे दिन के पहले हम हमारे सेंटर में करीबन 15 दिन पहले पेशेंट के साथ इंटरेक्शन चालू हो जाता है। पेशेंट को पूरा समझते। आपने मिस भारती करकरे का लेक्चर पढ़ा कि हाउ मच डेप्थ इट इज, कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन डूइंग सर्जरी, क्योंकि सर्जरी तो एक पार्ट है। हमको प्लीज कीप दैट स्लाइड अस्मिता, या कीप दैट स्लाइड, या। सो सर्जरी के बारे में हमको बहुत ही ख्याल है कि ये डिटेल्ड सर्जरी है, उसके अंदर पेशेंट का कॉन्फिडेंस जितना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली पेशेंट बट उसके केयर टेकर का भी। तो हम बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, और ऑलमोस्ट 700 सर्जरीज में आज कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं हुआ है कि जो अपना डीबीएस सिस्टम अपनी तरफ से वो संभाल नहीं पाया है। और फिर भी हमारी टीम हमेशा अवेलेबल होती है व्हाट्सएप के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा टू गाइड देम इफ दे हैव एनी कंसर्न्स। I am a retired male and was diagnosed with young onset Parkinson's disease when I was 53. If you are 53, वो young onset Parkinson's disease नहीं बोलते। 40 के पहले डायग्नोस होता है तो young onset Parkinson's disease होता है। और 2 साल से आई एम फेसिंग फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग एंड गेट। यस, अगर आपको वॉकिंग डिफिकल्टी है जो ऑन पीरियड में चली जाती है तो आपको डीबीएस डेफिनेटली अफेक्ट इंप्रूव करेगा। नॉट ओनली फॉर दैट, मेनी अदर थिंग्स विद द एडवांस डिजीज, माना आप 65 माना 12 साल का डिजीज हो चुका है तो ये टाइम पे आपको सर्जरी की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो इट इज बेटर टू गेट असेस्ड एंड अंडरस्टैंड। सर्जरी कराओ ना कराओ आपकी मर्जी है, आपकी डिसीजन लेने की वो है डोमेन, बट जानकारी तो आपको लेनी ही चाहिए और डिटेल्ड जानकारी लेनी जरूरी है, सही जानकारी लेनी जरूरी है ताकि आप मोस्ट इन्फॉर्म डिसीजन कर सको। माय मदर इज 81 ईयर ओल्ड, पार्किंसन डिजीज 2009, उसको भी 25-20 साल हो गए, 15 साल हो गए, एंड नाउ शी इज हैविंग सफरिंग फ्रॉम डिस्काइनेसिस ऑफ द बॉडी, प्लीज सजेस्ट।
I had asked this question in the last event also. Sorry, we could not answer you this question. She should, if she is medically fit, she should be evaluated by a specialist whether a surgery will be helpful or to her or not, because she is having dyskinesia with a low dose of medicines. अगर मेडिसिन के इतने डोज में भी डिस्काइनेसिया आता है तो उसका मतलब है कि हम डोज नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर डोज नहीं बढ़ा पाते हैं तो उनका ऑफ पीरियड बढ़ता जाएगा। तो मेरे पास और कोई तो सॉल्यूशन है नहीं। फिर भी ऐसी जरूरी नहीं है कि भाई हर एक पेशेंट को हम सर्जरी ऑफर करेंगे। कभी कभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर कॉन्फिडेंस, प्रॉपर नॉलेज अबाउट हाउ टू मैनेज द डिजीज और आगे जाके क्या होगा, ये अगर मिल जाता है तो आपको ठीक लगेगा। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी? ये बहुत ही वेरी करता है एंड इट्स अ वाइड रेंज। आप कौन सा स्टेज में हो, कौन से टाइप का डीबीएस चाहिए आपको, कौन सा डायरेक्शनल लीड चाहिए, नॉन डायरेक्शनल लीड चाहिए, कौन सा पेसमेकर यूज करेंगे, ये बहुत सारी चीजों को एसेस करके हम बताते हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सर्जरी और यू हैव बीन, आपको सर्जरी के बारे में किसी ने बोला है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरी टीम के साथ इंफॉर्मेशन देके, ताकि वो लोग आपको ज्यादा ना ज्यादा सही इंफॉर्मेशन दिखाए। 79-year-old, मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको समझाया था, एज इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यस एज इज अ कॉशन। अभी भी एक पेशेंट जो है जसलोक अस्पताल में, एक बड़े फिजिशियंस, मुंबई के बड़े फिजिशियन है, वो भी 73 years old है, फिर भी उन्होंने अपने सर्जरी कराई है। तो अगर आपको सर्जरी से फायदा होने वाला है, आपकी मेडिकल कंडीशन फिट है और आप सर्जरी से फायदा लेने चाहते हैं, तो सर्जरी के बारे में एक बार डिस्कशन तो जरूर कर लेना चाहिए। Any specific yoga or exercise for Parkinson? Yes, dancing and meditation are very good. Second is yoga. You should continue to do yoga, especially yoga which improves your balance. Word games are good for keeping the brain cells working. Green tea के बारे में मुझे मालूम नहीं है. I think that I have answered those questions. Let me see. Okay. Now we have got more questions. If there are several problems like gait and tremor, is one directional lead sufficient or several are required? Only one directional lead is required, not many. Which battery is better? Mr. Singh, मैंने आपको बताया कि we cannot decide. It is highly individual decision based on many factors. So वो मुश्किल है। मिस्टर तिवानी या मिस तिवानी जो भी है, जो पूछ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डीबीएस, मैंने अभी उसका आंसर दिया। और ये कितना कंसेशन देगी वो भी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी है, तो बट इट इज हेवीली डिस्काउंटेड। तो आप खाली फॉर्म भर के यू कैन गेट इन टच, और आपको सब जानकारी बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर प्रोफाइल, व्हाट यू आर रिक्वायरिंग, व्हाट यू वुड नीड वगैरह के बेसिस पे आपको दी जाएगी। इज फोकस अल्ट्रासाउंड therapy better option compared to DBS? No, because focus ultrasound is right now not scientifically indicated for Parkinson's disease. The results have not been confirmed. They are all in a trial state, and I have hesitation to say कि वो शायद long term benefits नहीं दे पाएगा। Next is I underwent DBS with Boston, and now, as Dr. Doshi said, that with advancement of tech, can the advanced benefit be availed by me? Yes, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हुमेरा का कि डीबीएस उन्होंने करवाया है और एडवांस टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से फायदा और मिल सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। आपका डिजीज हर 3 साल पे चेंज होता है, और उस टाइम पे हमको कैसे इसको कैप्चर करना पता चलता है। और बॉस्टन साइंटिफिक का जो पेसमेकर है, उसमें बाहर से हम रिमोटली सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है इस तरह से, सो दैट वी कैन गिव यू बेटर बेनिफिट। Informed about footwear should not be. Could you tell us what should be used? You should use closed shoes. Open shoes नहीं यूज करना, स्लीपर्स नहीं यूज करना है। क्लोज शूज या स्लिप ऑन, जो पैर में से फिसल नहीं जाए, चप्पल निकल नहीं जाए, उस तरह के चप्पल यूज करना है। Challenges faced post DBS, Gautam Datta, you are most aware about it. It keeps on changing, and as it keeps on changing, आपको उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। Risk
ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, लास्ट टाइम मैंने ये पेपर भी आपको समझाया था, रिस्क इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अगर आपकी टीम एक्सपर्ट और एक्सपीरियंसड है तो रिस्क इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हमारे लास्ट 300 केसेस में कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ है। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्शनल लीड? डायरेक्शनल लीड, देखो, कोई चीज अपने आप से खराब नहीं होती, उसका गलत इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। तो मैंने आपको वो वीडियो में ही बताया कि अगर जानकारी नहीं है अपने को तो आप लीड को ब्लेम करेंगे। लीड को ब्लेम करने का मतलब नहीं, लीड इज अ डेड पैसिव थिंग, उसको कोई वैल्यू नहीं है, वो तो लाइफलेस चीज है। बट उसको किस तरह से यूज करते हैं उसके ऊपर तुम्हारा सब है। तो डायरेक्शनल लीड इटसेल्फ हैज नो साइड इफेक्ट, इनफैक्ट इट हैज ओनली एडवांटेजेस। द ओनली डिसएडवांटेज इज इट टू द डॉक्टर, बिकॉज अगर डॉक्टर को जानकारी नहीं है तो इसको प्रोग्रामिंग करने में जिंदगी निकाल देगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको सुनना जरूरी है ये चीज के आंसर के लिए, कि कैसे हमने आगे की टेक्नोलॉजी बढ़ाई है, कैसे हमने नॉलेज इसका बारे में बढ़ाया है, ताकि इवन जो सेंटर्स के पास अनुभव नहीं है वो भी हमारा प्रोग्राम यूज करके डायरेक्शनल लीड को प्रोग्रामिंग कर सके। आफ्टर डीबीएस डज अ पेशेंट नीड अ केयरटेकर? डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, कितना खराब है, कितना सीवियर है। कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, डिपेंड्स ऑन दैट, बट डिपेंडेंसी बिकम्स लेस। वापस किसी ने जसलोक हॉस्पिटल की कॉस्ट पूछी है। ये कॉस्ट बार बार मैं बता रहा हूँ कि सेम चीज है, कि जब भी जरूरत होगी तभी बताएंगे कौन सा सर्जरी है, किधर है, कौन सा पेसमेकर यूज करते हैं उसके हिसाब। My wife is 7-year history and main problem is imbalance. Yes, Mr. Shah, your wife can fit a DBS protocol after proper assessment. So we need to know sometimes ये जो स्टोरी बोलते हैं वो पेशेंट को शायद कभी कभी पार्किंसन होता ही नहीं है। And it is important for us to differentiate between Parkinson's and non-Parkinson's. And Dr. Shah, you are a doctor, so it is better that I can talk to you in English. That ये जो है समटाइम्स, वेरी रेयरली, 7 years ड्यूरेशन में नॉन पार्किंसन पेशेंट का डायग्नोसिस हम करते हैं, एंड दैट टाइम देन वी आर हेजिटेंट टू ऑफर डीबीएस। मैंने एक ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा फास्ट चला गया बिकॉज आई थॉट कि मेडिकल प्रेजेंटेशन का पार्ट है तो मजा नहीं आएगा, बट इट कुड हैव बीन वेरी अप्रोप्रिएट फॉर डॉक्टर विनोद शाह, बिकॉज हमने एक डॉक्टर का इसी तरह का स्टेज में ऑपरेशन किया था जहां उनको डायलेमा था कि उनको पार्किंसन है कि नहीं, और वो वीडियोस हमने बताता चाहता था कि हमने चैलेंज लेके वो सर्जरी किया और ही कंटिन्यू टू गेट द बेनिफिट। सो डॉक्टर शाह, टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, it's best that we evaluate her, and once we have evaluated we can let you know. I'm by EOPD, early onset pain. I'm 48, dyskinesia and freezing gait, tremors not much, rigidity half an hour before dopamine. Depends, Sunandita, again, doesn't look like, but you already have started having motor fluctuation. Motor fluctuation का मतलब है कभी दवाई का असर आना, कभी दवाई का असर नहीं आना। Dyskinesia is a side effect of medicine. So, and you are young, तो आप बहुत ज्यादा तो आगे जा नहीं सकते। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ लाइफ, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अफेक्टेड है, आपको कितना इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके हिसाब से हमको ये डीबीएस आपको ऑफर कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू शुड, मैं सब लोगों को एडवाइस करता हूँ, आप कोई अच्छे सेंटर का एडवाइस लेने में कोई नुकसान नहीं है। हम भारत देश में रह के बहुत सारी तकलीफें उठाते हैं, बहुत सारी तकलीफें झेलते हैं, लेकिन एक ही चीज ये देश की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, जो आप सब लोग जो ये वेबिनार में है वो एग्री करेंगे, इज द हेल्थ केयर। जब भी तबीयत बिगड़ती है तो आपके पास कितनी भी धन दौलत हो अच्छी नहीं लगती है। तबीयत से ज्यादा बड़ी दौलत कोई नहीं है, और ये दौलत आपको ये देश में एक कंसल्टेशन फी के द्वारा मिल जाती है। आप ये चीज अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, जर्मनी में जाओ, कहीं पे भी कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक। यहाँ पे आपको एक फोन कॉल से एक डॉक्टर मिलता है। इतनी छोटी चीज के लिए आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में कोई डर डर नहीं है। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए एंड देन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। डोंट गो बाय व्हाट चाचा भतीजा mama chachi are telling, because they are not qualified, nor the Google is qualified to give you an answer.
अगर गूगल क्वालिफाइड होती तो 30 साल का एक्सपीरियंस क्यों करते थे लोग? So you should get a doctor's advice whenever you are in doubt and check it out. If you don't like it, don't accept it. As simple as that. What happens to a patient when he comes debilitated disease? Do they have to inform you all? यूजुअली पेशेंट के डॉक्टर को वो बता देगा कि अगर उसने डीबीएस कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसको कोई भी अदर डिजीज फाइट करने में भी सुविधा मिलेगी. हाँ, you said you take MRI before DBS. I think ये प्रीति करके जिन्होंने लेक्चर सुना, बहुत ध्यान से सुना है, आई अप्रिशिएट दैट. और वो पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस आप देखेंगे 3 साल के बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी MRI इवेल्युएट करने की. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पार्किंसन डिजीज स्टैटिक नहीं है. और जो पार्किंसन मरीज है, कोई 3 साल में है, कोई 6 साल में है, कोई ने 10 साल पास किया है, वो सोचेंगे कि डॉक्टर दोषी जो बोल रहे हैं सही है, कि मेरा पहले 3 साल का जो डिजीज था और दूसरे 3 साल में था वो अलग था, और पहले 5 साल में था और दूसरे 5 साल में था वो अलग था. तो एज द डिजीज चेंजेस, प्रीति, what we do is we assess what are the disabilities, what are the important functions that the patient wants to improve. And as I showed you, the connections of the fibers help us decide if we can stimulate some newer areas in the subthalamic nucleus itself to improve the outcome of that patient. Deep brain stimulation surgery kitni effective hai, how long? As per our understanding, our first patient continued to benefit for 24 years. So I would suggest कि, और आज तक हमने जितने भी सर्जरी किए हैं, all patients continue to use deep brain stimulation surgery for life. How AI will be implemented in future to treat neurodegenerative disease? Many options are there, and there are a couple of research projects already undergoing at Jaslok Hospital. Yeah, Yogesh, is a point of discussion for another webinar. It will take a whole new webinar. Can a PD consume weekly alcohol? Mr. Singh, you will have to talk to me personally. Why weight loss happens during Parkinson's and what is the solution? Weight loss happens because of a depression, because of dyskinesias, involuntary movement, and because of constipation. All these three things factors help you or contribute towards weight loss. There is no after surgery cost. It's just like one consultation, and our follow-up at Jaslok Hospital is usually not more than once or twice a year. Is there a genetic test which can be done to detect PD early or no? Only 5 to 7% patients of Parkinson's disease have genetic predisposition. Rest of them are called idiopathic Parkinson's disease. Kenneth, I was diagnosed with young onset Parkinson's in 2008, and in 2000 I have undergone DBS. Is still good till now, but this year my voice is going slurry and repetitive, getting a bit problem, feel like a jerk. Maybe, Kenneth, you may need a little reprogramming with a lower pulse width, and that may help you. Dr. Vinod Shah, thank you. There is a person called Bharti. My wife is a 69-year-old and benefited by DBS surgery done 4 years ago. Despite visit to so many specialists, we have told one specialist that her electrode is not placed properly. My wife is still suffering from dyskinesia, freezing. Can she have DBS? She can have DBS surgery again, but आज हमने almost 250 पेशेंट्स के आसपास reprogramming किए होंगे, जो पेशेंट्स दूसरी जगह पे ऑपरेट हुए हैं, and those patients who have not been benefited because they find out कि ये सेंटर एडवांस सेंटर है, तो इधर जाके हम नया सर्जरी करा लेते हैं. बट 250 पेशेंट में हमने 2 या 3 पेशेंट का ही रीऑपरेशन किया है. बाकी के पेशेंट्स को हमने रीप्रोग्रामिंग करके वी हैव बीन एबल टू कैप्चर बैक ऑल देयर बेनिफिट्स. High dose of vitamin B1, B2 are said to be beneficial in slow down progress. Not too much of an aware. My surgery is in Boston and scientist. Good, thank you. So I told you about the gene therapy. It's not available clinically, so you are right. It is phase 2. No, it is not scary. It is very promising, and I'm looking forward to finishing up the phase 2 trial with Dr. Vinod. And as soon as it is over, phase 3 trial will come for the first time in India to Jaslok. So Brian is my personal friend, so we will get it here. Any food that can provide dopamine naturally, we can have
discussion on that next meeting. ये topic नहीं है. Do the tremors disappear completely after DBS SP Singh? Yes, most of the time, 98% of the tremor reduction is there. For non-rechargeable, is the second surgery for replacement for the battery as major as? No. The second surgery for replacement of the battery is a very minor surgery, and we have performed it on even 85 and 87-year-old patients under local anesthesia. After deep brain stimulation surgery, do you patient gain weight? Yes, patient will definitely gain weight. My father has recently diagnosed Parkinson. We are not sure if Parkinson disease is Parkinson. You can get a second opinion from a good movement disorder specialist, or even you can come to Jaslok. Extended release levodopa, and yes, levodopa CR is available, but certain other types of levodopa formulation are still not available. I think we have answered a lot of questions today, and we could get time for almost answering almost 50, 60 questions, more than that. So with that, I think we will wrap up this session, and I again ask you to take note of this DBS surgery support, and also note down the next webinar is on 10th. It is going to be one of the best webinars that you must have ever heard, because every patient who is on this webinar will understand Dr. Ray Chaudhary, one of the topmost specialists of Parkinson's disease in the world, is going to join us from London, and he is going to tell you how to preserve your memory, how to preserve your balance, how to improve your sleep, every damn thing about what you have questions and which your doctors over here have not been able to help you with. He will tell you, because he is the pioneer in tailor-made Parkinson's disease treatment. So don't miss the last webinar of the series on the 10th of April, and we will see you all again then. Goodbye and good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.